جو ایک حوالہ اس سے پہلے کہ ہم اس میں جائیں جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے رومیو 8 باب اور اس کی 28 آیت. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حوالہ ہے یہ کلیسیا کے اندر رچ بس جائے، یہ کلیسیا کو یاد ہو. یہ یاد کیوں ہونا ہے اور یہ کیوں جاننا ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ کو یہ یاد ہوگا، یہ روحانی میچورٹی ہے، یہ خدا یسوع مسیح پر ایمان ہے، یہ اس کی ہر کہی ہوئی بات کے اوپر آپ کا بلیف سسٹم ہے. رومنز چیپٹر 8 ورس 28. کچھ اور ورسز ہیں جو میں آپ کو دوں گا، آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سال جو ہے یہ بھلائی کا سال ہے. یہ سال خدا نے کہا، ہم سے بات کی کہ یہ سال انکامن فیورز کا سال ہوگا، اور ہم نے ان انکامن فیورز کو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے لیے انکامن فیور جو ہے وہ تبھی ہوگی جب آپ کے پاس $1 بلین آ جائے گا، تو that is an uncommon favor as well. لیکن جو زندگی میں آپ کے بہت ساری چیزیں جو نہیں ہو رہی تھی اور ہونا شروع ہوئی، وہ uncommon favors ہیں. ان فیورز کو آپ یاد کر کے، اور بہت سے لوگوں کے لیے بہت بہت بڑا کچھ ہوا ہے اور بہت کچھ ہونے کو ہے. ہاللیلویہ. ابھی بھی سال میں کتنے دن باقی ہیں؟ 45 days. میں نے خدا کو کہا، خدا 31 دسمبر 11:59 اور 59 سیکنڈ پہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ مجھے پتا ہے وہ قادر مطلق ہے، omnipotent, all powerful, omniscient, all knowing. اس کو پتا ہے آپ کو کیا چاہیے. لیکن ایک بات آپ کو پتا ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ میاری مسیحی کی زندگی کا حصہ ہے، اور وہ ہے رومیو 8 باب اور اس کی 28 آیت. اور یہاں پر لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اور ہم کو کیا معلوم ہے؟ اور ہم کو معلوم ہے. پلیز یہ کہیں میرے پیچھے. ویڈنسڈے کو بھی ہم نے اسی کے اوپر سیکھا تھا، اور میں نے ویڈنسڈے کو کوشش کی تھی کہ ہم وہاں پر اس حوالے کو یاد کر سکیں. یہ حوالہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. جب آپ تکلیف میں ہوں، جب آپ مشکل میں ہوں، جب آپ لودبار میں پھنسے ہوں اور نکلنے والے ہوں، اور تب بھی آپ کو پتا ہو اور آپ کہیں کہ اور ہم کو معلوم ہے. اور جب آپ کو چیزیں ہوتی ہی نظر نہ آ رہی ہوں، پہاڑ آپ کے اوپر گر رہے ہوں، اور جن پہاڑوں کو آپ کو سر کرنا ہے آپ ان پہاڑوں کو سر بھی کر رہے ہوں، چوٹی پہ پہنچے اور وہ پہاڑ آپ کے پاؤں سے پھسل جائیں، اور آپ کو پھر بھی معلوم ہو کہ نا یہ سب کچھ میرے لیے بھلائی پیدا کر رہا ہے. اور ہم کو کیا معلوم ہے؟ اور ہم کو معلوم ہے کہ کچھ چیزیں، تھوڑی سی چیزیں، میرے مطلب کی چیزیں جو اچھی چیزیں ہیں وہ میرے لیے بھلائی پیدا کر رہی ہیں. سب چیزوں میں کیا ہے؟ سب چیزوں میں سب کچھ ہے. سب چیزوں میں بیماری بھی ہے، سب چیزوں میں بیٹریل بھی ہے، سب چیزوں میں دکھ بھی ہے، سب چیزوں میں تکلیف بھی ہے، سب چیزوں میں جاب کا چلے جانا بھی ہے، سب چیزوں میں بے عزتی بھی ہے. کچھ لوگوں کے لیے ان کی انٹیگریٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. For me, my integrity is very important. اور ہر مرد خدا کے لیے اس کی انٹیگریٹی امپورٹنٹ ہونا ضروری ہے. خدا کے خادمین، خدمت کرنے والے جتنے خدا کی خدمت میں شریک و شامل ہیں، آپ کی انٹیگریٹی بہت امپورٹنٹ ہے. آمین. کیا صرف خادمین کی انٹیگریٹی بہت امپورٹنٹ ہے؟ کس کی؟ ہر مسیحی ایماندار کی. ہر جب کہتی ہے نا مسیحی ایماندار، تو اس کے بعد انٹیگریٹی از پارٹ آف اٹ. انٹیگریٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی انٹیگریٹی. تھینک یو ویری مچ میرے وقار. تھینک یو ویری مچ. وقار، آپ کی عزت، آپ کا اچھا گڈ سٹینڈنگ، وہ بہت ضروری ہے. لیکن آپ کی انٹیگریٹی جو ہے، نہ تو اس کو بیماری، نہ اس کو دکھ، نہ اس کو تکلیف، نہ اس کو مفلسی، یہ کچھ بھی اس کو امپیکٹ نہیں کر سکتی ہے جب آپ خدا یسوع مسیح کے ساتھ پیوست ہے. آمین. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے
किसके लिए? खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हम सबको इतनी आयत आती है, हमें पहला हिस्सा और हमको मालूम है, वो मालूम नहीं है। और जो अगला हिस्सा है, हमें सिर्फ इतना पता है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। इसके बाद अगला हिस्सा क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? यानी के मीनिंग क्या? मतलब यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, होता जाए, बशर्ता के तुसी आप ही नहीं कर रहे। पता चले ट्रेन की पटरी के सामने जाके लेट के कहना बादल ने क्या सी आयत पढ़ो, और सब चीजें मिलकर खुदा उनसे मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। और हमको मालूम है ना वो आप अपनी वजह से जा रहे हैं, वहां पे कोई भलाई पैदा नहीं होने वाली। हाँ, खुदा भलाई पैदा कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है अगर आप वाकई उसके इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस किस्म की बेवकूफाना हरकत करेंगे। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो यू आर मैच्योर बिलीवर्स। मैच्योर बिलीवर्स बने, चोर बिलीवर्स ना बने। बी मैच्योर बिलीवर्स, डोंट बी चोर बिलीवर्स। चोर बिलीवर कौन सा होता है? वो जब चाहता है ना बिलीव में चोरी मार लेता है। वो जब छोटी चीज आती है तो वो मैच्योर बिलीवर होता है, ओ मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। जब जरा बड़ी नहीं, वो तो चोरी शुरू। चोरी किस चीज की? उसका ईमान डामाडोल हो जाता है। और हमको मालूम है कि आपको मालूम है आपकी दुख, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, the cycles in which you are, जिसमें स्टक है, वो सब कुछ मिलकर, क्योंकि आप खुदा उनसे मोहब्बत रखते हैं, आपके लिए भलाई पैदा कर रही है। आमीन। आप समझते हैं आपके लिए भलाई पैदा होगी मुश्किल में से उनके लिए, यानी उनके लिए जो उसके इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। ये हवाला प्लीज आपने लिख लेना है, उसको याद करते रहना है। और आई वांट यू टू राइट जर्माया 29:11, जर्मिया 29:11, दूसरा ग्रंथियों 4 बाब उसकी 17 आयत, पहला ग्रंथियों 2 बाब और 9 आयत। Jeremiah 29:11 is कौन सा हवाला? For I know the plans I have for you, क्योंकि मैं तुम्हारे अपने ख्यालात को जानता हूँ, अच्छाई के, भलाई के। दूसरा ग्रंथियों 4:17 है, क्योंकि हमारी दम, ये अपने पास लिख ले, क्योंकि हमारी दमदर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए खुदा का अजहद और भारी जलाल पैदा करती जाती है। और पहला ग्रंथियों 2 बाब और 9 आयत में लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा उनसे मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उन सब के लिए जो उसके इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये हवाला जात आपने लिख लिए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन हवाला जात the remaining year 45 days start dwelling on these verses, इन वर्सेस को डेली डिक्लेयर करना शुरू कर दें। क्या आप ये करने को तैयार हैं? आप जब किसी को भेज रहे हैं उससे पहले पढ़ें और कहें, खुदा तेरा कलाम जिंदा कादिर मुतलक है, और ये मेरे लिए, ये मेरे खानदान के लिए, ये मेरे घराने के लिए, ये मेरे बीवी के लिए, ये मेरे हस्बैंड के लिए, ये मेरे बच्चों के लिए, ये मेरे बहन भाइयों के लिए, और ये मेरी कलीसिया के लिए काम करने को है। और यीशु के नाम में जो कुछ आप भेजना शुरू करेंगे, वो तख्लीक, ये खुदा का कलाम तख्लीक पाना शुरू कर देगा। वो ऑलरेडी क्रिएटिव है, वो क्रिएट करता है, और यीशु के नाम में एडिफाई कलीसिया के अंदर बरकत आना शुरू हो जाएगी। आमीन। आइए अब आज के कलाम की तरफ पढ़ेंगे। आमीन। सो आज टाइम लंबा होने को है, क्योंकि हम जो कुछ सीखने को हैं उसकी तरफ हम बढ़ने को हैं। ये कहानी आपने सब, और ये वाकया ना कहानी, ये वो वाकया है जो खुदा यीशु मसीह ने जो काम किए हैं, उनमें से चंद एक काम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर
वो सारे जो कुछ खुदा यीशु मसीह करता रहा, अगर वो सब कुछ को यहाँ पर लिखा जाता तो कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पे वो सब कुछ कलम बंद हो सके। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं जब जाऊँ तो मैं जाके आसमान पर जब हम हो तो हम यूहन्ना के साथ, हम बाकियों के साथ, मत्ती के साथ स्पेशली आई वांट टू सिट विद हिम, क्योंकि वो बड़े मजेदार तरीके से मुझे बताएगा। और फिर मैं सब कुछ यीशु से पूछूं, यीशु तूने अपनी ज़मीनी खिदमत में क्या क्या किया? और फिर यीशु मुझे कहेगा तेरे लिए एक ही काम बड़ा है जो मैंने सलीब पे किया है, हालेलुया, जिसकी वजह से आज तू मेरे साथ मेरे पास है और हम रफ़ाकत रख रहे हैं, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? बेथहस्दा जो है ये एक हौज है जो यरूशलेम में वाक़या है, और ये वहाँ पर यीशु मसीह उस वहाँ पर गया है। और ये कब का वाक़या है जी? ये यीशु मसीह जो है ईद है, एक यहूदियों की एक ईद, और बहुत से इसको कहते हैं कि ये ईद पासओवर फसह की ईद थी। और यीशु वहां पर यरूशलेम में गया है, और ये भेड़ दरवाजा जो शीप गेट है उसके पास एक हौज है जो इब्रानी में बेथहस्दा कहलाता है। बेथहस्दा का मतलब जो है हाउस ऑफ मर्सी, रहम का घर, हाउस ऑफ ग्रेस, फजल का घर। अगर आप अपने पास लिखना चाहते हैं तो जरूर लिख सकते हैं। और ये वो जगह है जहां पर ये शख्स स्टक है। और मैकेनिज्म इसका क्या है? बेथहस्दा का वहां पे एक सिस्टम है जो डेवलप हुआ है, और वो मैकेनिज्म ये है कि वहां पर फरिश्ता आता था जो कि किसी भी वक्त, कोई एक मुकर्रर वक्त नहीं था कि उसे सुबह 6 बजे आना है, वो किसी भी वक्त आ सकता था। वो वहां पर आता और उस पानी को हिलाता था, और जितने लोग वहां पर मौजूद होते थे उनमें से जो शख्स पहले, जो कोई उस वक्त जब पानी हिलाया जाता था उस वक्त उस पानी में उतर जाता तो वो बीमारी खा किसी भी किस्म की हो वो शिफा पाता था, वो चंगा और बहाल हो जाता था। अब यहां पर एक शख्स है जो कुछ चंद बरसों से बीमार है, और वो चंद बरस कितने हैं? 38 years। वाओ, 38 years is a long time। एक बड़ा वक्त है। हमारे शायद यहाँ पे बहनों में कोई एक दो ही हैं जो 38 years के आसपास होंगे, बाकी सब छोटी हैं। और हमारे जवान भी जो है वो सब 30 साल से नीचे वाले ही हैं। 38 साल जिसकी उम्र है उसको पता है कि ये बहुत बड़ा अरसा है। 38 years से वो शख्स क्या है? वो अपाहज है। और यहां पर 38 years नहीं लिखा कि वो 38 years से वहां पर मौजूद भी है या नहीं है। जो समझा जा रहा है, जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से वो बात कर रहा है, इसका यहां से हमें पता चलता है कि वो वहां पर एक लंबे अरसे से मौजूद है। वो उम्मीद में, वो इंतजार में, और वो रहम के घर में रहम का मुंतजिर है। वो फजल के घर में अपनी जिंदगी में फजल होने का मुंतजिर है, और वो वहां पर रहम का इंतजार कर रहा है, फजल का इंतजार कर रहा है। और फजल उधर आ जाता है, रहम का मंबा वहां आ जाता है, वो खुद उसके सामने आ जाता है, हालेलुया। और वो कौन है? वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। आज का जो टाइटल है, और ये बेथहस्दा आपकी भी वो जगह जहां पर आप स्टक है बहुत अरसे से। बहुत से लोग हम में से बेथहस्दा में स्टक हैं। देयर आर सो मेनी सिचुएशन जो हमारी बेथहस्दा बनी हुई है। किस किस को याद है लोदेबार? एंड वी केम आउट ऑफ लोदेबार। खुदा ने कलाम किया और लोग लोदेबार से बाहर निकले। And that was so powerful, that was so profound, क्योंकि खुदा ने बात की। आज आप में और मैं और हम बहुत से बेथहस्दा में स्टक हैं, रहम के घर, फजल के घर में, रहम और फजल के इंतजार में हैं, ब्रेक थ्रू के इंतजार में हैं, वहां से निकलने के इंतजार में हैं। आपके लिए फजल आ रहा है। आमीन। The title of the sermon is When Grace Walks into Your Bethesda। जब फजल आपके बेथहस्दा में आ जाता है। बेथहस्दा वो जगह जहां पर इंतजार हो रहा है,
अब यहाँ पर वो शख्स मौजूद है और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको वहां पर पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उसने उससे बात की है। अब यीशु मसीह वहां पर आ गया है, जो ओमनीशिएंट है, सब कुछ को जानता है, जो ऑल नोइंग गॉड है, और जो ग्रेस और मर्सी उसके अंदर से बहते और फ्लो करते हैं। जब वो वहां पर आता है, जो ओमनीशिएंट है, जो सब कुछ को जानता है, वो यहां पर मौजूद है। वो सब कुछ को जानता है, वो आपके बारे में, मेरे बारे में, हम सब के बारे में, हमारे स्ट्रगल्स के बारे में जानता है। वो हमारे बैतहस्दा को जानता है कि मैं कहां स्टक हूं। आप में से कोई भी जो स्टक है, कमिंग आउट ऑफ बैतहस्दा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में डिक्लेयर करें कि और मुझे मालूम है, टुडे आई एम कमिंग आउट ऑफ इट। आज मैं इसमें से बाहर निकल रहा हूँ यीशु के नाम में। आज मैं इस साइकिल को ब्रेक कर रहा हूँ यीशु के नाम में, क्योंकि मेरा यीशु आया है, जो सब कुछ को जानता है और जो काबिल मुतलक है, जो ओमनीपोटेंट है, हु इज ऑल पावरफुल, जो काबिल मुतलक खुदा है। और जिस जगह पर वो आ जाता है, वहां पर तब्दीली आती है। आमीन। जिस जगह पर यीशु मौजूद होता है, वहां मौजूद होते हैं, वहां जिंदगी आती है, वहां सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता है, वहां साइकिल्स ब्रेक होते हैं, वहां जो जनरेशनल कर्सेस हैं वो ब्रेक होते हैं, वहां जनरेशनल लिमिटेशंस ब्रेक होती हैं यीशु के नाम में। Today we are going to break in the name of Jesus generational limitations. Generational limitations क्या है? खानदानों में पैटर्न्स आपको नजर आएंगे। साढ़े जिंदगी से शादी नहीं होगी, साढ़े शादी हो जाती है तो शादी चलती नहीं है। जनरेशनल कर्सेस। बहुत सारे लोग जवानी में चले जा रहे हैं। बहुत सारे खानदानों में मर्द जो हैं वो 40 साल 45 साल के बाद उनकी वफात हो रही है। कौन बनेगा इन लिमिटेशंस को ब्रेक करने वाला? यीशु के नाम में आज वो लिमिटेशंस ब्रेक होने को है, यीशु के नाम में। और वहां पर यीशु मसीह मौजूद है। और आप जिस जगह पर बहुत से फंसे हुए हैं, कहीं मैं यीशु के नाम में से निकल रहा हूं, क्योंकि मेरा यीशु मौजूद है। आपका बैतहस्दा वो जगह है जहां पर आपका मोजज़ा होने का आप इंतजार कर रहे हैं और मोजज़ा नहीं हो रहा। आप उस जगह पर हैं कि बाकी आगे निकलते जा रहे हैं, क्योंकि बाकियों का सपोर्ट सिस्टम हासिल है, बाकी तंदुरुस्त है, या बाकियों के पास आप उनके पास एडवांटेज है और वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं और आपको दूसरे अपने आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर आप वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। कुमक नहीं आ रही, सपोर्ट नहीं आ रही, ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा। आपका दिल और उम्मीद दोनों टूटे हुए हैं और जहां पर आप खुद को भुलाए हुए हैं। पता है बहुत दफा क्रिश्चियन, मैच्योर क्रिश्चियंस, उनको भी ये चीज हिट करती है। इट्स नेचुरल। जब आपको ये लगता है कि शायद मैं भुला दिया गया हूं, खुदा शायद मेरी आवाज सुन नहीं रहा है, या आप बड़ी कोशिशें करना शुरू कर देते हैं, आप अंदर ही अंदर घुलना शुरू कर देते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, ये कब खत्म होगा। आपके लिए खुशखबरी है कि आपका यीशु बैतहस्दा में मौजूद है, वो वहां आया है। हालेलुया। और उसने सवाल उससे किया, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? सबको छोड़ के उसके पास गया है, उसको जानता है, और वो खुदा आपसे भी पूछ रहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू इस साइकिल में से निकलना चाहता है? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जीसस इज आस्किंग यू। क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? क्या आप बरकत पाना चाहते हैं? क्या आप उन साइकिल्स से निकलना चाहते हैं, उस भंवर से निकलना चाहते हैं, उस क्लाउड में से निकलना चाहते हैं जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब चीजें आगे बढ़ नहीं रही हैं। आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करने की कोशिश की है, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं? यीशु ने सवाल किया था और यीशु सवाल करता था। मैं हमेशा ये कहता हूं, यीशु को सब पता था
وہ اندھے کو جا کے کہتا ہے کہاں بتا 10 پتیلے کی کرا. وہ بھیک مانگ رہا تھا, اس کو پتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, اکھاں صحیح کر دے. وہ پھر جا کے پوچھ رہے تینوں کی چاہیے. یوسف نے کہا ہو سکتا ہے میں جاؤں اس کے لیے دعا کروں تو اکھاں دی بجائے ڈالر مانگ لے. جب آپ کو آنکھوں کی ضرورت ہے آنکھیں مانگیں تو ڈالرز آپ ہی دیکھ لیں گے. آپ don't put your eyes on those things which are not important than your sight. آپ کی بنائی, روحانی بنائی سے زیادہ اور کچھ زیادہ ضروری نہیں ہے. جب وہ کھل جائے گی تو سب کچھ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا, اور خدا یسوع آپ کے لیے آج کر رہا ہے. آمین. اور اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر وہ کیا کہتا ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں میں نے سب کچھ کر لیا ہے. تب یسوع نے کہا کیا تو تم سے سونا چاہتا ہے؟ اور اس نے کیا کہا؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں, ہاں میں تندرست ہونا چاہتا ہوں, کر دے تو, اگر تو کر دے گا تو یہ بڑا زبردست ہو جائے گا. اس کا جواب ہم 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں. اس بیمار نے سے جواب دیا, یسوع نے یہ پوچھا تھا کہ تیرے پاس کوئی آدمی ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ You know what? جب میں نے یہ سوال کیا نا, آپ میں سے بہت ساروں کے ذہنوں میں وہ وائرنگ سسٹم آپ کا ایک دم ایکٹیویٹ ہوا, اور آپ کو سارے آپ کے چیلنجز نظر آنا شروع ہو گئے کہ نا ہمارے لیے تو یہ ایکچولی اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ نہیں ہو رہا, صحیح جگہ پہ مجھے کوئی انویسٹر نہیں مل رہا, مجھے صحیح کلک نہیں مل رہا. ابھی کبھی ایک ذرا کلک مل جائے نا, اوہ یہ والا انٹرویو صحیح ہو جائے, وہ والا انٹرویو صحیح ہو جائے. یسوع نے اس کو کہا تھا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اور یسوع نے آپ سے پوچھا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیا تو بھلا چنگا ہونا چاہتا ہے؟ کیا تو اس سائیکل میں سے نکلنا چاہتا ہے؟ آپ کا ذہن جو آپ کو بتا رہا ہے کہ مشکل ہے, ہاں دعا کریں گے, forget it. وہاں پہ وہ کیا جواب دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی آدمی نہیں. وہ بھی یہی جواب دے رہا ہے کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی مدد نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے, مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کبھی کبھی خدا انسان کے سارے سہارے ختم ہونے دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ سارا جلال اسی کو ملے. آمین. کبھی آپ نے یہ چیز اپنی زندگی میں محسوس کی ہے کہ جس کے اوپر آپ سب سے زیادہ سہارا, جس کے اوپر سب سے زیادہ آپ ڈیپینڈ کر رہے تھے, وہی شخص آپ سے مڑ گیا ہو, یا وہی شخص ایسی حالت میں آ گیا ہو کہ وہ آپ کی مدد نہ کر سکے. اور پھر آپ خدا کی طرف دیکھیں, ہاں خدا آپ کی زندگی میں ایسے لوگ لائے گا جو آپ کے لیے برکت کا سبب بنیں گے, جو آپ کے لیے سہارا بنیں گے. لیکن بہت دفعہ خدا یہ ہونے دے گا کہ وہ سب کچھ کو آپ کے پاس سے ہٹا دے گا. That it's only you and me, God. آمین آمین آمین. اور آپ آج کتنے ہیں جو امید سے نکل کر ایمان کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں؟ ہم امید رکھتے ہیں. اوکے, there are two things. امید رکھتے ہیں is a good thing. پاک روح ہماری امید کو بڑھاتا ہے. And then the next step is ایمان. ایمان یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے, کہ خداوند سب چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ پہلے سے موجود ہیں. آمین آمین آمین. اور یہ شخص حوض کی طرف جا رہا ہے جہاں فرشتہ پانی کو ہلانے کو ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میکنزم یہ تھا کہ جو پانی کو, فرشتہ جب پانی کو ہلاتا تھا تو کون شفا پاتا تھا؟ کتنے لوگ شفا پا جاتے تھے وہاں پر جتنے وہاں پر موجود ہوتے تھے؟ کتنے وہاں پر جتنے سارے موجود ہوتے تھے؟ جو پہلے, ہو سکتا ہے کوئی دو اکٹھے گر جاتے ہوں تو ان میں سے, یا سارے اکٹھے, یا پہلے جس کا the first one to touch وہ شفا پاتا تھا. اب آپ لوگوں نے بھی اٹینٹیو, لکھنے والے اپنے پاس لکھتے, حوض کا فرشتہ پرانے عہد کی نشانی ہے. یہ شخص پرانے عہد کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اس کو اس میں شفا نظر آ رہی ہے کہ مجھے شفا نہیں مل سکتی ہے. لیکن پرانا عہد جو ہے وہ کس
उसको फेवर करता है, जो सबसे मजबूत है वो उसको फेवर करता है, उसको फेवर करता है जो जिसके पास सबसे ज्यादा बरकत है, जो सबसे पाक है उसको इज्जत बख्शता है, और जो सबसे ज्यादा तेज होता है उसको यहाँ जवाब मिलता था। और जो कोशिश करता रहता है कि मैं बेहतर बन सकूं, पुराना अहद यही था कि कोशिश करके आपको अपने आप को पाक और साफ रखना होता था, और जितने सारे जो मूसवी शरीयत थी आपको वो सबके सब पे अमल करना होता था। आप अगर एक हुक्म भी छोड़ देते थे तो पूरी शरीयत आप उससे फारिग हो जाते थे। यहां पर वो पुरानी शरीयत की तरफ जा रहा है, पुराने अहद की तरफ जा रहा है, और उसके सामने नया अहद उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। हालेलुया। पुराने अहद में आप पुराने अहद की तरफ जाते हैं, नया अहद आपकी तरफ आता है, वो आपको बचाने के लिए आता है। पुराने अहद में आप कोशिश करते हैं कि आप जाकर चीजों को आप बेहतर करें, आप गुनाह ना करें, आप कुर्बानियां चढ़ाते थे, आप अपने आप को साफ रखते थे, लेकिन वो कुर्बानियां गुनाह को पाक और साफ नहीं करती थी, छुपा देती थी, ढांक देती थी। नया अहद आया जिसने अपना लहू लेके वो खुद ही एक ही बार पाक तरीन मकान में दाखिल हो गया और हमें हमारे गुनाहों से मखलसी और छुटकारा दिया है। अब वो यहाँ पर मौजूद है। पुराने अहद में मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश का अहद था, और ये शख्स पुराने अहद की तरफ बढ़ रहा है। मैंने कहा है याद रखे, ये पुराने अहद की तरफ बढ़ रहा है और नया अहद इसके सामने आके खड़ा हुआ है, और नया अहद इसके पास बढ़ रहा है, और नया अहद इसके साथ बात कर रहा है, और नया अहद इसको क्या कर रहा है, उसके सामने खड़ा है, उसके सामने उससे बात कर रहा है। अब अगर हम पुराने अहद और नए अहद को देखते हैं, बैतहसदा का नाम, उसका मतलब क्या था, मैंने क्या बताया जी? रहम का घर, फजल का घर, हाउस ऑफ मर्सी एंड हाउस ऑफ ग्रेस। वो रहम का घर था, मगर रहम महदूद था। क्यों महदूद था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और रहम कभी कभी होता था, पानी हर वक्त हिलता रहता नहीं था कि हर वक्त हिलता जा रहा है और लोग जितने आ रहे हैं वो शिफा पाते जा रहे हैं। रहम मशरूत था, किस बात से? सबसे पहले उतरने वाले को शिफा मिलती थी, और रहम इंसान की सलाहियत पर मुनहसर था, डिपेंडेंट था। किस तौर पर? कि जो जितना मजबूत होगा, जिसके पास ज्यादा सपोर्ट होगी, वही शख्स शिफा पा सकेगा। और रहम उसके फजल पर अब नए अहद में आ जाए यीशु, वो क्या है? रहम का मंबा है। हालेलुया। वो फजल है, वो फजल का सरचश्मा है, और वो लामहदूद रहम है, और मुसलसल रहम उससे बहता और जारी रहता है, और रहम उसके फजल पर मबनी है। रहम उसके फजल पर मबनी है। नए अहद में रहम किस पर मबनी है? यीशु मसीह के फजल पर, खुदा बाप के फजल पर मबनी है, ना कि हमारी कुव्वत पर उसका इन्हिसार है। हम अपनी कोशिशों से फजल को हासिल नहीं करते हैं, निजात को हासिल नहीं करते हैं। क्या आपने अपने अमाल से निजात को हासिल किया है? हमने फजल से, खुदा के फजल से। ईमान लाना आपने और मैंने है, तब हम निजात पाएंगे। और अब यहाँ पर पुराने अहद में और नए अहद में जो शिफा तक रसाई है, एक्सेस टू हीलिंग, पुराना अहद उसमें सिर्फ एक शख्स शिफा पाता जब वो उस पानी में उतर जाता। सबसे मजबूत, तेज और सबसे ज्यादा मदद वाला शख्स शिफा पाता था। जो पहले आता सिर्फ वही शिफा पाता था। ये सिस्टम विनर्स एंड लूजर्स का बना हुआ था। अब जो नया अहद उसके सामने खड़ा है, ये नया अहद सबको शिफा देता है। हालेलुया। कमजोर, लाचार, टूटे, सबको रसाई हासिल है। एवरीवन हैज एक्सेस टू हिम। मैं एक बात हमेशा हम कहते हैं कि सब ये कहते हैं ये कुर्बानी ले आओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये भेंट चढ़ा दो, ताकि आपको खुशनुदी मिले, ताकि आपकी रसाई ऊपर तक हो जाए। हमारा रिवर्स मैकेनिज्म है। वो अपनी कुर्बानी देकर हमारी रसाई खुदा तक करा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, सबको हक मिला है, कोई दौड़ नहीं है, कोई लाइन में लगे रहने की जरूरत नहीं है। आपको नए फजल में आपको लाइनों में लग के अपनी बारी का इंतजार करने की जरूरत है। अब पुराने
अहद में हम होश की बात कर रहे हैं, पुराना अहद हमने उस होश को कहा है, और नया अहद यीशु मसीह। ये इसमें हीलिंग और शिफा कैसे जारी हो रही थी? फरिश्ता की कैसे थी शिफा जारी होती थी? फरिश्ता पानी हिलाता था, उसके ऊपर मुनहसर था, एक मुकर्रा नहीं, एक वक्त था जिसमें वो आकर पानी हिलाता था, वो किसी भी वक्त हो सकता था, और वो वहां पर उसको पानी हिलाता था, उस मूवमेंट उसी वक्त उसमें जाना होता था। और इसमें आपकी अपनी कोशिश या दूसरों पे इन्हिसार मुनस्सिर था, लेकिन जो अहद नया उसके सामने खड़ा है, उसने शिफा कैसे दी है? उसके कह देने से शिफा जारी हुई है, हालेलुया। उसके इख्तियार के वसीला से शिफा जारी हुई है, उसकी हुजूरी के होने के वसीला से शिफा जारी हुई है, उसके फजल के वसीला से शिफा जारी हुई है। और तेरा फजल मेरे लिए काफी है, हालेलुया। और फिर इसके अलावा कौन क्वालिफाइड था शिफा के लिए? कौन कौन हकदार था? ये पुराने अहद में ऐसे सारी चीजें थी, मौजूद थी, लेकिन हम इस अक्सर बैतहस्दा के उसमें सिनेरियो में देख रहे हैं। कौन था जी किसको शिफा का हकदार? कौन था? जो सबसे ज्यादा मजबूत था, जो सबसे पहले चला जाता था, जो तेज था, जिनको दूसरों की मदद हासिल थी, जिनके लिए कोई ना कोई साथ खड़ा होता था, कोई ना कोई लेके जो सबसे पहले उतरता था वो शिफा पाता था, वो हकदार था। लेकिन फिर नया अहद आया, कमजोर तरीन भी हकदार हो गया, हालेलुया। आखिरी जो लास्ट है वो भी हकदार हो गया। जो भूले हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, जो भुला दिए गए हैं, वो भी हकदार हुए। जिनके दिल टूटे हुए हैं वो भी हकदार हुए। और ये सिस्टम जो ना कर सका, ये निजाम जो था, ये सिस्टम जो था, ये उसके माजी को शिफा नहीं दे सकता है, ये उसके हाल को शिफा नहीं दे सकता है, ये उसके हाल को बदल नहीं सकता है, उसके मुस्तकबिल को चंगा नहीं कर सकता है, उसकी रूह को शिफा नहीं दे सकता है। वो बैतहस्दा किसी की रूह को शिफा नहीं दे सकता था, किसी के माजी को शिफा नहीं दे सकता था। माजी की शिफा क्या है? वो शर्म को खत्म नहीं कर सकता था, वो शिनाख्त नहीं दे सकता था। नया अहद यीशु ने उसको शिफा दी, यीशु ने उसके माजी को शिफा दी। माजी को शिफा कैसे दी? जब उसको नया किया और फिर उसको कहा जा अब गुनाह ना करना, उसको उसने चंगा किया, उसके मुस्तकबिल को उसने शिफा दी, उसको उसने इख्तियार दिया। यीशु ने उसको इख्तियार दिया। किस चीज का इख्तियार उसको उसने दिया था? चलने फिरने का। उठ और चल फिर। उसको डायरेक्शन दी, उसको कहा जा, गो, वॉक, और उसको कहा गुनाह से उसको रिहाई दी, और उसको कहा है कि फिर गुनाह ना करना। आज अगर आप अपनी साइकिल्स में से निकलना चाहते हैं जिसमें फंसे हुए हैं, so many people who are stuck, आपको पता है हम में से बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। हम बहुत सारी चीजों में जाकर फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम सही जिंदगी भी गुजार रहे हैं, बट देन अगेन हमें ये है कि ये कैसे होगा। नया अहद इख्तियार देता है, नया अहद रसाई देता है, नया अहद आइडेंटिटी देता है, नया अहद सब कुछ को अच्छा करता है। आमीन। और नए अहद ने उसको क्या कहा? उठ, राइज। क्या क्या कहा था? 3 चीजें। उठ, ये 3 चीजें एक ही जुमले में कही, और फिर एक और बात उसने कही बाद में। The first thing was उठ। Kids churches here. खुदाम यीशु ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उठ जो है ना, come on. The grace is in your Bethesda. When grace walks into your Bethesda, जब वो फजल आपकी जिंदगी में आ जाता है, तो कहता है फजल क्या कहता है? फजल आपको बदल देता है। फजल आपको कहता है, यीशु ने उसको कहा उठ, और उठना जरूरी है। आप में से जितने अपने उस भंवर में फंसे हुए हैं, उस एक ही क्लाउड में फंसे हुए हैं, उन चीजों में फंसे हुए हैं, ये वक्त उठने का है। और उठना क्या है? उठना इसलिए जरूरी है, शरीयत होती तो आप खुदा बाप के हुजूर ना जा सकते हैं। शरीयत होती तो आज भी कौन जा रहा होता?
सरदार काहिन साल के साल जा रहे होते आपके और मेरे लिए कुर्बानियां चढ़ाने के लिए, हमारे गुनाहों को महफूज और ढांकने के लिए। नया अहद आ गया जो खुदा यीशु मसीह के लहू से है, और हम उसके तख्त के सामने दलेरी के साथ आते हैं। हालेलुया, आई एम कमिंग बैक। यीशु मसीह ने उसको कहा उठ, और आज यीशु भी आपको कह रहा है उठ। ब्रेक द पोस्चर ऑफ योर पास्ट। अपने माजी का वो जो आपका अंदाज था रहने का, जीने का, चीजों के साथ उनको टैकल करने का, उसमें से निकल कर, नाकामी की शनाख्त में से निकल कर बाहर आए, और आपका नया सीजन, लिसन टू मी एवरीवन, आपका नया सीजन आपकी नई पोजीशन पे डिपेंड करता है, आपके नए पोस्चर पे डिपेंड करता है। और वो लेटे रहने से, वो गिरे रहने से, वो बैठे रहने से, वो सुस्ती से तब्दील नहीं होगा। आप अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फजल मौजूद है जो आपका हाथ थामे आपको कह रहा है उठ। यीशु के नाम में आज उठे, यीशु के नाम में खड़े हो उन तमाम चीजों के अगेंस्ट जो आपको बढ़ने से रोक रही हैं। एंड वी आर गोइंग टू कैंसिल एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू कैंसिल द रिजेक्शंस। हम रिजेक्शंस को कैंसिल कर रहे हैं यीशु के नाम में, हम नाकामी को कैंसिल कर रहे हैं यीशु के नाम में। आर यू विद मी? आर यू गोइंग टू कैंसिल द फेलियर्स इन द नेम ऑफ जीसस? आज हम नाकामियों को कैंसिल करेंगे, आज हम उन फेलियर्स को खत्म करेंगे यीशु के नाम में, आज हम उन डिस्पैरिटीज को खत्म करेंगे यीशु के नाम में, आज हम उन तमाम बीमारियों को, खानदानी नस्ली लानतों को यीशु के लहू में कैंसिल करेंगे, उन लिमिटेशंस को यीशु के लहू में कैंसिल करेंगे। बहुत से बच्चों को देखकर आप कहते हैं बिल्कुल अपने बाप की तरह है, ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। एंड इफ दे आर गुड, दैट इज सो गुड। अगर वो नहीं है तो हम कहेंगे यीशु के नाम में वो लिमिटेशन स्टॉप हो जाएंगे, यीशु के नाम में। यीशु ने उसको कहा उठ, और अगली बात यीशु ने क्या कही? अपनी चारपाई उठा, टेक अप योर मैट। अब वक्त है कि आप और मैं उन तमाम चीजों पर फतह पाएं और फतहमंद हों जो हमें रोकती रही हैं, जिनके ऊपर हम बड़ा अरसा रिलाई करते रहे हैं। टेक योर अथॉरिटी, टेक योर अथॉरिटी ओवर व्हाट लिमिट्स यू। टेक योर अथॉरिटी, अपना इख्तियार इस्तेमाल करें उन तमाम चीजों पर जो आपको महदूद कर रही हैं। Listen, this is important. अपने उस इख्तियार को, आपके पास कौन सा इख्तियार है? इख्तियार कौन सा आपके पास? मैंने तुम्हें इख्तियार दिया कि सांपों के शुरू को पूछ लो और दुश्मन की सारी आओ। ये अथॉरिटी डेलीगेटेड अथॉरिटी है जो यीशु मसीह की है, जो उसने आपको दी है। अपने इख्तियार को लेकर उन हालात पर फतह पाना शुरू करें यीशु के नाम में। आपको पता है आपका फियर आपको रोके हुए है फतह से। आपको पता है हम बहुत सारे खौफज़दा हैं, खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। किस चीज का खौफ है? खौफ पे मैं बहुत दफा बात करता हूँ। खौफ रियलिटी है, और खौफ रियलिटी है। प्लीज अपने खौफ को अपने ऊपर फतहमंद होने ना दे। वो हालात, वो बातें जो आपको लिमिट कर रही हैं, टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी उस सब कुछ के ऊपर जो आपको लिमिट करता है। आपको कौन कौन सी चीजें लिमिट करती हैं? हमारा खौफ हमें लिमिट करता है, हमारी लिमिटेशंस हमें लिमिट करती हैं। हर एक की लिमिटेशंस हैं। किसी की लिमिटेशन, मेरी लिमिटेशन प्रॉब्ली इंग्लिश होगी, मेरी लिमिटेशन प्रॉब्ली एक लिमिट ये भी है कि आई कैन नॉट हाइड माई इमोशंस प्रॉब्ली एट टाइम्स, दैट इज माई लिमिटेशन। घुमा फिरा के नहीं हो पाती है, कई दफा उसका नुकसान होता है। इफ आई डोंट लाइक यू आई विल नॉट से दैट, बट अगर कोई बात डजंट मीन मैं आपको नापसंद करूंगा, लेकिन अगर आपकी कोई बात मुझे नापसंद होगी वो मैं आपके साथ जरूर सामने से बात करूंगा। एट टाइम्स इट बिकम्स माय लिमिटेशन एज वेल, लेकिन इससे बढ़कर और बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। झूठ हमारी लिमिटेशन है, गुनाह सबसे बड़ी लिमिटेशन है जिसने आपको रोका हुआ है,
जो आपको खुदा में बढ़ने से रोक रहा है, जो आपको तरक्की से रोक रहा है, जो आपको फतहमंद होने से रोक रहा है, जो आपकी शनाख्त को रोक रहा है। गुलाम यीशु मसीह ने उसको कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा, और अगली बात क्या थी? चल फिर। और उसने क्या किया था? कौन आ सकता है इधर जिसको मैं उठ और चल फिर? Who can come? Who can help me? JJ, I love you. Come. JJ, आजा. JJ, जल्दी. मंजीश जी है. JJ, lie down here. वो सोना नहीं है इधर होके. वो गलबात कर रहे सी. यीशु ने उसको कहा, उठ. हाथ पकड़ के उठाया सी यीशु ने. यीशु ने क्या कहा था? उठ जा. उठा कौन है? उठा कौन था? क्या वो उठ सकता था पहले? वो कोशिश करता था, वो तो बीच में ही रह जाता था बेचारा. वो उठा है. उसने एक काम किया कि ये जो कह रहा है मुझे वो करना है. उसने ये नहीं पूछा मैं कैसे. उसने पहले जरूर उसको कहा कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है, मेरे पास कोई मदद नहीं है, मेरे पास कोई कुम्मत नहीं है, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं शिफा नहीं पा सकता. इस वजह से जब यीशु ने उसको कहा उठ, उन्होंने कहा भैया तो कोई और बंदा ही है, मेरी गला देने कोई तवज्जो ही नहीं देती है, मैंने क्या ही नहीं है, इसने मेरे साथ कहा ही नहीं. हो वेरी सॉरी जे यार, कुछ करेंगे अब, ये तो ऐसा है वैसा ना. यीशु ने उसको कहा उठ, और वो उठा. और यीशु ने उसको कहा अपना मैट उठा, और फिर यीशु ने कहा जा चल फिर. और उसने क्या किया? वो अपना मैट उठाकर उसने क्या किया? वो चलना फिरना शुरू हो गया. हालेलुया. चलना और फिरना, जब आप अपनी ऑब्स्टेकल से बाहर निकलेंगे, ये चलना फिरना एक मकसद के लिए है. ये चलना फिरना ऐਵੇਂ खाली इधर उधर नहीं, चलो जी मैं ठीक हो गया हुण बस यही करना है. ये चलना फिरना अपने मकसद में, अपनी बुलाहट में चलना फिरना है. हालेलुया. जब खुदा यीशु मसीह आपको शिफा देता है, आपको उन हालात में से निकालता है, तो आपको अपने पर्पस में, अपनी कॉलिंग में, अपनी डायरेक्शन में चलना है. क्योंकि यीशु ने कहा है उठ और चल फिर. Go walk into your destiny, go walk into your direction, go walk into your purpose, go walk into your calling. और उसकी कॉलिंग उस वक्त क्या बन गई थी? वो उन सब के दरमियान घूम फिर रहा है. वो कभी इत्थे कूद रहा है, कभी उत्थे जा रहा है, जाके खाम खाया वो फकी फरीसियां नु सारियां नु उन्हां नु दस रहा है. देखो वो कह रहे ने भाई तू किथे, तूने ये चारपाई या ये मैट क्यों उठाया हुआ है? कहता है वो जिसने शिफा दी है ना, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हें तो रोना चाहिए. तुम मातम क्यों नहीं करते हो? तुम अफसरदा क्यों नहीं लगते हो? तू क्यों चारपाई उठाए हुए है? उसने कहा जिसने मुझे शिफा दी उसने मुझे कहा है. हालेलुया. जो आपको शिफा देने पर कादिर है, जो आपको आज नया कर रहा है, जो आपकी जिंदगी में से लिमिटेशंस को तोड़ रहा है, खत्म कर रहा है, यीशु के नाम में उन साइकिल्स में से निकलना शुरू हो जाए. यीशु के नाम में. और आप देखेंगे और हम उसकी भलाई का यहाँ, थैंक यू वेरी मच जे लीम, और आप हम सब उसकी भलाई का इकरार करेंगे यीशु के नाम में. हालेलुया. और उसने एक और बात की, जब ये तुम गुनाह ना करी, तुम ठीक हो गए, जा अब गुनाह ना करना. Coming out of your troubles, of your cycles, आज यीशु के नाम में उसको हम तोड़ने को है. आमीन. अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसकी हुजूरी में हम इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हाँ खुदा यीशु मसीह तो खूबसूरत है. और जहाँ तू आ जाता है वहाँ पर बहाली, वहाँ पर रिहाई,
वहाँ पर शिफा, वहाँ पर नया काम होता है। और हम यीशु के नाम में, हाँ खुदा आप दुआ करने वाले हैं, आप खुदा से प्यार करने वाले हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में आप स्टक हुए हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है where you feel yourself stuck, और आपको कोई साथ में नजर नहीं आ रहा है कि आप कैसे निकल पाएंगे। उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो यहाँ पर मौजूद है जो आपसे कह रहा है उठ, उठ। और वो हालात जिन्होंने तुझे तंग किया, जिस पर तू रिलाई करता रहा, वो दफ़ा हम उस चारपाई को अपने साथ गले से लगा लेते हैं, हम उसके ऊपर जीना शुरू कर देते हैं। कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, कम आउट ऑफ लोदेबार से बाहर निकल आए। आपके लिए फजल जारी हुआ है, हालेलुया। और वो फजल आपके सामने खड़ा है, वो आपके अंदर रहना चाहता है। और वो यीशु मसीह जो नजात दहिंदा है, वो आपकी तमाम लिमिटेशंस को दूर करने पर कादिर है, वो आपकी जिंदगी में से बीमारियों को दूर करने पर कादिर है। और सबसे बढ़कर वो आपको नई जिंदगी, नई शनाख्त देने पर कादिर है, आपके गुनाहों को माफ करने पर कादिर है। अगर आज तक आपने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी है, सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और आज आप अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं, उसके बगैर कोई जिंदगी नहीं है। आज आप अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं, उसके लहू से धुलना चाहते हैं, उसको कहें खुदा यीशु मसीह मैं अपनी जिंदगी तुझे देना चाहता हूं। कोई अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहे वो अपनी जगह पर खड़ा हो सकता है। सब आंखें बंद रहेंगी। ये बहुत ही पर्सनल कॉल है, ये बहुत ही पर्सनल कमिटमेंट है। कोई अपनी जिंदगी यीशु को अगर देना चाहता है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं तो आप कहेंगे खुदा यीशु मसीह मुझे अपने लहू से पाक और साफ कर, मुझे धोकर नया कर दे। मैं अपना नहीं, मैं तेरा हूं। खुदा यीशु मसीह मेरी नहीं तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो और मुझे पाक और साफ करता जा। यीशु मुझे अपना बना ले, मैं तेरी राहों पर चलता जाऊं और तू मेरी जिंदगी में बरकत जारी कर। सब आंखें बंद रहेंगी, सब आंखें बंद रहेंगी, सब आंखें बंद रहेंगी, सब आंखें बंद, कोई किसी को नहीं देखेगा। एंड इफ यू फील यू आर स्टिल स्टक, ये हम दुआ करने वालों के लिए भी हो सकता है। आई एम स्टक इन सर्टेन सिचुएशंस, वो साइकिल्स ब्रेक नहीं हो रही हैं। अगर आप स्टक हैं, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। आपको शिफा चाहिए, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। आपको नई डायरेक्शन चाहिए, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। आपका बिजनेस स्टक है, चीजें नहीं हो रही हैं, चीजें स्टक है, उसमें आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। आप खुदा से कह सकते हैं, ऐ खुदा यीशु मसीह तू आ, तू इंटरवीन कर। और बहुत दफा ये होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, बड़ी दफा हम ये सोचते हैं शायद अगर इस चीजों पर खड़ा होना, अगर मैं खड़ा होऊंगा तो वो ऐसा लगेगा कि शायद मेरी जिंदगी में बरकत नहीं है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप अगर खुदा के हुजूर, एंड आई एम सेइंग वी गेट स्टक इन सर्टेन थिंग्स इन मिनिस्ट्री, बहुत सी चीजों में हम फंस जाते हैं, हम रुक जाते हैं और वो विशियस सर्कल्स जो हैं वो हम उसमें घूमते रहते हैं, चीजें नहीं हो पाती हैं, आपके बिजनेस में नहीं हो रही हैं। यीशु के नाम में अभी और हम इसी वक्त हुक्म देने को है, यीशु के नाम में हम हुक्म देने को है, हम यीशु के नाम में हुक्म देने को है। आए अपने अपने मामला, अपने हालात को हुक्म देना शुरू कर दें। सब कुछ को कहें टर्न अराउंड यीशु के नाम में हो जाए। सब कुछ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो साइकिल्स ब्रेक हो, यीशु के नाम में वो रुकावटें टूटे, यीशु के नाम में वो सब कुछ नया हो जाए, यीशु के नाम में। हालेलुया। रबाबा का लारा शंदे रे बेबे, आए अपने लोगों को खोलकर दुआ करना शुरू करें। आए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पुकारना शुरू करें। खुदा यीशु को कहें, खुदा यीशु तू जो यहाँ पर आया है और मैं सब कुछ को तेरे हाथ में दे देता हूँ। मैं इस बात को जानता हूँ कि सब कुछ में तू भलाई पैदा कर रहा है, तू भलाई पैदा करने वाला खुदा है। प्लीज प्लीज जो बैठे हैं वो जरूर दुआ करें। प्लीज वी कैन रीड बाइबल लेटर, बट प्लीज सब दुआ करें। अगर आप बैठे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दुआ, आप हमारे लिए दुआ करें, आप बाकियों के लिए दुआ करें जितने बैठे हुए हैं, और जो खड़े हुए हैं वो अपने लोगों को खोले यीशु के नाम में। आपके बिजनेसेस अगर बरकत, आपके बिजनेसेस में बरकत नहीं है, बरकत को मांगना शुरू कर दें।
और जिनके बिजनेसेस में बरकत है वो दूसरों के लिए बरकत को मांगना शुरू कर दे। आपकी जॉब में बरकत नहीं है, आप अपने लिए बरकत को मांगना शुरू कर दें। यीशु के नाम में चीजें स्टक हुई हैं, आप उनको यीशु के नाम में हुक्म देना शुरू करें, सब कुछ नया होना शुरू हो जाए यीशु के नाम में। रब्बा खाला राशन दे 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 दे। ये वक्त खुदा का है, ये वक्त खुदा की हुजूरी का है और उसका फजल यहाँ पर मौजूद है, उसकी हुजूरी यहाँ पर मौजूद है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में खुदा हम यीशु को कहें, खुदा जब तू आ जाता है हालात बदल जाते हैं, जहाँ पर तू आता है वहाँ पर तब्दीली आ जाती है, वहाँ सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता है यीशु के नाम में। तमाम बी अ चेन ब्रेकर, बी अ चेन ब्रेकर। I use every chain in the name of Jesus. I break every chain in the name of Jesus. यीशु तेरे लहू के वसीला से इन सब जिंदगियों के ऊपर तेरा फजल जारी हो। Uncommon favor, uncommon favor. I declare uncommon favor in my life, Jesus. यीशु के नाम में अनकॉमन फेवर को अपनी कलीसिया के लिए डिक्लेयर करते हैं, यीशु के नाम में खानदानों के लिए डिक्लेयर करते हैं, यीशु के नाम में जिंदगियों के लिए डिक्लेयर करते हैं, यीशु के नाम में अनकॉमन फेवर यीशु के नाम में डिक्लेयर करते हैं। उसको रिसीव करना शुरू करें, अपने खानदानों पे, अपने 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 हालात पर डिक्लेयर करना शुरू करें यीशु के नाम में, अपनी कलीसिया पे डिक्लेयर करना शुरू करें यीशु के नाम में। रब्बा खारा बाशन दे 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हम फतह पाते हैं यीशु के नाम में, हम फतह पा रहे हैं यीशु के नाम में, हम फतह पा रहे हैं यीशु के नाम में। फतह जारी हो रही है यीशु के नाम में। अब्लीस के वो नाम गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, हम फतह पा रहे हैं यीशु के नाम में। पाकरू हमें हिकमत से भरता जा, पाकरू हमें दानिशमंदी और खिदमती से भरता जा, पाकरू तू जो हमारे उम्मीद को बढ़ाता है, हमें लीड कर, हमें गाइड कर और हम यीशु को जलाल देते जाए। तेरा शुक्र खुदा, तूने आज एक बड़ा काम किया है, ये हमारा ईमान है और हम सब कुछ को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते पाते हैं।